Hello everyone, I am Saksham Sharma, former HR and recruiter of TCS and founder of Career Coach. Friends, we are making a series of mock interviews and real interview experience of ongoing TCS NQT hiring. So we are trying to make an effort wherein we are bringing different students who have qualified for the interview to share their experience so that you can hear from them that what was asked in the interview. And I myself was the former NQT interview panel and I have taken more than 1,000 interviews for TCS. So we are trying to also correct the students from their answers, whether it was a right answer or wrong answer, so that other students who are waiting to give their interviews can understand it and then can correct it for their interview. So basically, we are working on building in a community that can learn from each other interview experience at the same time from our expertise as well. So this particular interview is in that series only. If you are interested to join that community, please register on the link given below in the description box. It is completely free of cost. So as of now, every day we are doing a call from 8:30 to 9:30 in the evening, wherein we are hosting a candidate who has given his interview recently, and he will share his experience that which questions were asked to him, and then I correct him about the right answer or wrong answer, and then other students who join the call can ask the student as well as me also about their queries regarding the NQT interview and how they should be preparing. So it will definitely help you to improve your interview preparation and learn from our guidance. So do join. Thank you. So, friends, we have Ved with us. So, Ved is a student in Gujarat, one of the college in Gujarat, and then he got interview invite for the Prime, and then he has given his interview yesterday. And so I think the best people to learn from are the ones who have recently given the interview so that we can understand from their experience. So I thought to invite Ved so that he can share how was the interview, and then you can ask your questions, and then at the same time I will play the role of a facilitator here, correcting whether it was a right answer or not a right answer, so that you understand uh, from it. Okay. So Ved, let me spotlight you, then let me spotlight myself. Okay. Okay, Ved. So we'll have a Yes. discussion. So, how are you feeling? Like interview done? Must be very relaxed, right? Feel, yeah, sir. Actually, feeling much relaxed after that. Sunday, we can see the pressure, when you give the mock interview. So Yes. we could sense that, and of course, being a candidate and applying that to, from a prime candidate, anybody will get nervous, right? So, Yeah. friends, with all the audience in this call are NQT interview, qualifiers, and then some of them are prime candidates. Majorly are ninja, some of them are digital. Okay, so they will be appearing for their interview today, tomorrow, or maybe next week. So Okay. this session is just to help them how was your interview, what was asked, so that they can understand how the prime interview is being done, and then if any tips you have to share with them. Okay, Yes. so now you share from your experience how was the interview, and then I will ask questions. And our uh, participants can also ask questions, and you can also message if you want me to unmute, raise your hand. Anshul is asking, I'm Anshul, not to primary, but I'm from mechanical question into mechanical to coding field. Leave me stuck in interview. Don't know how to answer that honestly. Hey, Anshul will address you. No problem. Okay, wait, go ahead. Yes, sir. Firstly, I would like to know about the like all candidates are from India only, or I mean from Gujarat or anything like No, something no, like no. this. They Is are. there any language barrier, or can I use Hindi? So it will be more frankly for them. हाँ तुम बोल सकते हो हिंदी सबको आता है सब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से ही है मोस्टली आर फ्रॉम एमपी Yeah. छत्तीसगढ़ या
ओके, सो बेसिकली मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगा क्योंकि एज सक्षम सर नो माय आर्टिकुलेशन इज नॉट दैट मच ऑफ दैट मच लेवल, तो बेटरली मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो TCS की टीम आएगी, उनके बाद वो लोग आपको सेमिनार रूम या सम क्लासरूम में बिठाएंगे एंड देन दे विल लाइकली असाइन सम मेंबर्स लाइक निंजा वालों को अलग मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यू में रखेंगे वो लोग। हमारे वहाँ समथिंग लिस्ट कुछ लिस्ट या वैसा नहीं था, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट था। जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उनको वो लोग पहले इंटरव्यू में बुला लेते थे। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो कोई मतलब प्रिपेयर्ड है, खुद को लगता है कि हाँ आई एम प्रिपेयर्ड, सो वो खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर इस तरीके से हो रहा है तो पहले करवा ले, तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा पहले जल्दी। और अगर कोई सोच रहा है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए या किसी कैंडिडेट का रिव्यू देखने के बाद मुझे कुछ करना है या समथिंग लाइक दैट, तो वो वेट भी कर सकता है थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बेसिकली हमारे वहाँ ऐसा था, कुछ लिस्ट नहीं आई थी कि ये कैंडिडेट का पहले होगा, जस्ट डायरेक्ट ऐसा ही था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही था। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको वो बुला लेते थे इंटरव्यू के लिए। फिर आफ्टर दैट जब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो एज आई वाज अ प्राइम कैंडिडेट, तो बेसिकली हर एक के लिए अलग अलग पैनल्स असाइन किए हुए थे। तो हमारे वहाँ तो एक ही रूम के अंदर तीनों पैनल्स बैठे हुए थे टेबल में। बेसिकली आई थिंक सर, आई थिंक सब कॉलेज में से ही है और समथिंग कोई ग्रेजुएटेड है। फ्रेशर्स कुछ बच्चे MCA के होंगे, अदरवाइज मेजॉरिटी आर फ्रॉम कॉलेजेस ओनली। हाँ ओके, तो उन्होंने आई मीन कॉलेज का स्टाफ मतलब कि उनके कैबिन्स देखे ही होंगे, प्रोफेसर के कैबिन, तो मोस्टली एक प्रोफेसर का कैबिन ही था। तो उसी तरीके से वो लोग अरेंज किए बैठे हुए थे। और पहले ही जाते ही वो लोग आपको जब तक आई मीन पहले हमारे वहाँ एक कैंडिडेट के साथ हुआ था, मैंने सुना था, कोई बात कर रहे थे कि वो लोग पूछे बिना अंदर घुस गए, तो उनको पहले ही MR पैनल में जो थे उन्होंने बोला कि आप बिना पूछे ही आ गए, तो पहले वो ध्यान रखना कि भले आपको बोल दिए अंदर जाना है बट एटलीस्ट परमिशन लेके जाना है, लाइक मे आई कम इन सर, समथिंग लाइक दैट, या फिर नॉक करके जाओ बेटर है तो भी, और वो बोले कि हाँ आ जाओ तो अंदर आप जा सकते हो। एंड देन चेयर होगी आपके लिए बैठने के लिए, तो आप वहाँ फिर बैठ सकते हो। वो बोलेंगे आपको कि लाइक CTR और समथिंग लाइक दैट, एंड देन आप ग्रीटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर वो पहले बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हो। एंड मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे एक्सपीरियंस में समथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, लाइक उन्होंने मुझे बैठने का बोला एंड देन उन्होंने डायरेक्टली ये पूछ लिया, लंच का टाइम था तो उन्होंने डायरेक्टली लंच का पूछा मुझे कि हैव यू डन लंच और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने नहीं किया था, तो ऑनेस्टली मैंने ना बोला कि सर आई हैवंट डन लंच येट। तो फिर उन्होंने ये डायरेक्टली ये पूछ लिया कि कल रात को क्या खाया। तो बेसिकली ऐसे MR पैनल जो होंगे वो ऐसे कैजुअल या साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड हाँ, MR पैनल मेनली साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस के अराउंड ही वो लोग घूम रहे होंगे, और फिर वहीं से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। सो बेसिकली मुझे इंट्रोडक्शन करने का ऐसा कुछ मौका नहीं दिया उन्होंने फिर डायरेक्टली मेरे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिया कि ओके सो यू हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, एंड देन मैं कंफर्म करता गया कि यस सर आई हैव डन दैट। और अगर कुछ अचीवमेंट्स आपने स्कूल में भी किए हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे, जो आपको हाईलाइट कर रहे हो, समथिंग लाइक लीडरशिप, आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लिया हो या कोई अचीवमेंट्स हो आपकी स्कूल की, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कि हाँ सर मैंने ये किया था, आई हैव डन दैट, एंड इन विच आई वाज अ टीम प्लेयर विच शोज माय टीम क्वालिटी। तो आप खुद को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जो आपको उनके दिमाग में मतलब कि आपकी अच्छी इंप्रेशन डालते जाए, तो वो लोग इस हिसाब से आपको क्वेश्चनिंग करते जाएंगे आगे। फिर टेक्निकल की बात आए तो मतलब कि रिज्यूमे में जैसे मेरा टेक्निकल पार्ट आया तब उन्होंने स्विच कर दिया कि लाइक ओवर टू टेक्निकल पैनल लाइक, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। तो बेसिकली मेरा जो रिज्यूमे था वो फ्लटर बेस्ड ऐप डेवलपमेंट बेस्ड था, तो मुझसे उसी बेस्ड क्वेश्चन हुए। और फिर वहीं मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट किया, लाइक आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, करंटली मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने उसी के बारे में उनको डिटेल में बताया कि ये मेरा रोल है एंड समथिंग लाइक दैट, कि आई वाज वर्किंग फॉर दिस एंड आई वाज वर्किंग इन टीम, and since I also have been worked on GitHub, so I know Git,
एंड बेसिकली वही आपकी स्किल सेट बताते जानिए, क्योंकि वो लोग रिज्यूमे में देखेंगे बट आपसे वो कंफर्म करवाएंगे एक बार कि सो लाइक मैंने मेंशन किया हुआ था रिज्यूमे में कि आई हैव डन वन ट्रेनिंग इंटर्नशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि वेद सो यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने फिर उस तरीके से मुझसे कंफर्म करवाया कि हाँ क्या आपको पता है एआई के बारे में। तो फिर वहीं से फिर उसी के बारे में वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। फिर वैसे वैसे करते टेक्निकल में कोडिंग पार्ट आया। तो कोडिंग पार्ट में बेसिकली उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन बोले थे। फर्स्ट लिंक लिस्ट का था एंड देन एक क्विक सॉर्ट का क्वेश्चन पूछा कि क्विक सॉर्ट का लॉजिक मुझे बताना था, तो मैंने वो बताए। एंड देन अगेन उन्होंने एमआर पे स्विच कर लिया। तो फिर एमआर ने अगेन मेरे रिज्यूमे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते गए कि लाइक सॉफ्ट स्किल में उन्होंने पूछा कि अगर लीडरशिप आपने मेंशन किया हुआ है तो लीडरशिप की क्वालिटी आप किस तरीके से बताते हैं आपके रिज्यूमे में। तो मैंने एक टीम प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो उस हिसाब से मैंने बताया कि आई हैव डन अ टीम प्रोजेक्ट विच शोज माय लीडरशिप स्किल। एंड देन ओके इतना ही था एमआर तक। टेक्निकल में और कितना आपसे पूछा, मतलब कितनी देर चला टेक्निकल और कितने क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? कोड ओवरऑल लिखवाया सर था क्या? 30 मिनट्स का था, तो उसमें से हाँ सर ओवरऑल 30 मिनट का, जो मैं बोलूँगा 30 मिनट का इंटरव्यू था, तो उसमें से हाँ। टेक्निकल पार्ट आई थिंक 15 मिनट्स तक का होगा। बेसिकली ज़्यादातर थियरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि मेरे रिज्यूमे से ही थे। आउटसाइड ऑफ माई रिज्यूमे कुछ नहीं था सर, नथिंग आउटसाइड ऑफ माई रिज्यूमे, ऑलराइट। एंड देन टोटली रिज्यूमे बेस्ड था। दे आस्क्ड यू टू राइट अ कोड लिखवाया आपसे कोई? हाँ या सर, जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे वो दोनों के लिए उन्होंने पेन पेपर प्रोवाइड किया और बोला कि इसमें कोड लिखो। तो पहले मैंने पूछ लिया कंफर्म करने के लिए कि डू आई नीड टू यूज स्पेसिफिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कैन आई यूज सुडोकोड ओनली और लाइक एल्गोरिदम ओनली। तो उन्होंने बोला कि नो यू हैव फ्रीडम टू चूज योर कोड और यू इफ यू वांट टू राइट इट ओनली सुडोकोड ओनली, तो उस हिसाब से आप कोड लिख सकते हो। तो फिर लिंक लिस्ट का कोड बोला, जो हार्ड लेवल का मैंने बाद में सर्च किया, वहां पे मैं आंसर नहीं कर पाया था बट बाहर आके मैंने सर्च किया था। तो लीड कोड का हार्ड लेवल का क्वेश्चन था लिंक लिस्ट का। अच्छा, यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट वाज अ टफ क्वेश्चन, राइट? हाँ, जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे उसमें से ये एक आंसर नहीं कर पाया था मैं। थियोरेटिकल टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो क्विक सॉर्ट का था, वो क्विक सॉर्ट का लॉजिक मैंने समझाया और लिख भी दिया था। ओके। तो बेसिकली टेक्निकल पार्ट सर इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था टेक्निकल। और जो थियोरेटिकल में बोल रहा हूँ वो मेरे रिज्यूमे बेस्ड ही थे कि लाइक ऐप डेवलपमेंट में आपने ये यूज किया है, तो फिर उसी के अंदर फ्लटर के अंदर के ही क्वेश्चंस थे कि ओके कि ये आपने कैसे किया एंड ये कैसे किया, समथिंग लाइक दैट ओनली। ऑलराइट, ओके, गुड गुड। ओके, फिर एमआर में क्या पूछा आपसे? एमआर में मोस्टली सर ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस एमआर के साइकोलॉजिकल बेस्ड ही थे कि ओके कि आपने पहले ही स्टार्ट ही हमारा वहीं से हुआ था कि लाइक उन्होंने पूछा कि कल रात को क्या खाया, तो मैंने सिंपली यही कहा कि आई हैड पुलाव, नॉर्मल पुलाव। तो वहीं से उन्होंने बोला कि ओके सो यू हैड नॉर्मल पुलाव, तो व्हाट इज एबनॉर्मल पुलाव? तो वहीं से फिर स्टार्ट हुआ कि फिर मैं थोड़ा आंसर करने लगा कि आई थिंक सर वी कैन से दैट फ्राइड राइस कैन शेजवान राइस कैन बी एबनॉर्मल पुलाव फॉर मी। वहीं से फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर गाइस, दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज बट इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है? और जब कोई आपसे ऐसे मतलब उटपटांग क्वेश्चन करता है, देन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? You get confused, you get stuck, or you answer with a smile, right? So it shows about your personality, and I'm telling you, मतलब मैंने भी जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वी फील कि यार कैंडिडेट कैसा था, ना कि उसने कितने आंसर करे। एक वाइब आता है यार कि इस आज ये बंदा सही है, ठीक है, ये बंदा मतलब कर लेगा, अच्छा है, ही इज अ गुड एटीट्यूड, एंड दैट इज वेयर द सिलेक्शन हैपेंस, ठीक है? तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था पुलाव वाला, आई थिंक इज अ गुड क्वेश्चन, है ना? और इसका आप जितना कॉन्फिडेंटली अच्छा आंसर दोगे, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन अबाउट योर एटीट्यूड। गुड गुड वेद, सो अच्छा आपने राइट पुलाव को अब नॉर्मल बना दिया, सो इट वाज अ गुड आंसर, यस सर। ठीक है। एंड एक और चीज थी कि सर आई थिंक सभी कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट सारे पैनल्स ये पूछ रहे थे, लाइक मुझे नहीं पूछा बट मैंने जहाँ तक देखा तो मोस्टली मुझे ये नजर आया। सो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए प्रिपेयर है कि
मतलब टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एमआर का क्वेश्चन था। लाइक दे ऑलवेज आस्क हाउ वाज योर डे, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरव्यू आते आते टाइम आते आते मिड डे हो जाता है, तो वो लोग पूछते ये कि हाउ वाज योर डे एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कि आर यू इरिटेटेड बिकॉज Right, ऑफ right, right, दिस right. दिस I sunny day or I something like that. I always used to ask, for the candidates who have their interview post lunch, how was your day? So yeah. So क्या बताया आपने? एक्चुअली सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने डायरेक्टली यही पूछा था कि हैव यू डन लंच और समथिंग लाइक दैट, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। Okay. All right. Yeah. So apart from that, और क्या पूछा एमआर ने आपसे? अदर देन दैट आई थिंक इतना कुछ फिर नहीं था, वो भी फिर रिज्यूमे बेस्ड ही पूछ रहे थे। एमआर ने फिर जो सॉफ्ट स्किल का लीडरशिप क्वेश्चन था वो एमआर ने ही मुझे पूछे थे कि लाइक लीडरशिप स्किल आपने डाली है तो वो आप किस तरीके से शो कर सकते हो। Okay. फिर अदर देन दैट आई थिंक उन्होंने डिबेट लाइक डिबेट टाइप हुआ था थोड़ा, मतलब कि जो मेरे टेक्निकल एक क्वेश्चन में नहीं कर पाया था, तो वहीं से फिर उन्होंने मुझे स्टार्ट किया कि आपने टेक्निकल नहीं किया है तो क्या लगता है कि दे आस्क मी लाइक वी शुड नॉट हायर यू और हायर यू समथिंग लाइक दैट। उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाई शुड वी हायर यू, उन्होंने ये पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, Okay. you have not answered one coding question, so do you think like we should hire you or something like that। उन्होंने उस Okay. तरीके से क्वेश्चन किया, तो हाँ, फिर वहाँ पे अच्छा. मुझे कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ा कि नो सर आई हैव अदर even though I have not answered one question, but I can show my work through my internships and my projects. Like I have done something in app development domain, so which will help TCS clients। तो उस तरीके से मैंने शो किया कि हाँ कि वो आंसर नहीं किया, बट आई हैव समथिंग विच कैन हेल्प इन TCS इन ऐप डेवलपमेंट डोमेन। तो उस हिसाब से फिर हुआ था, और फिर उस हिसाब से उन्होंने वहीं पे एमआर एंड किया, एंड एट द एंड एचआर के आई थिंक सभी के फिक्स क्वेश्चंस थे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो लोग एक पेज देते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म का। Right. तो उसके अंदर जो मतलब कि उन्होंने डिक्लेरेशन किया होता है कि लाइक वी विल असाइन यू एनी शिफ्ट, सो आर यू ओके विद दैट, वी विल असाइन यू एनी लोकेशन, सो आर यू ओके विद दैट। एंड जो एक सर्विस एग्रीमेंट का होता है 50,000 का, आई थिंक उन्होंने मुझे बताया 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है कि अगर आप 1 ईयर का एग्रीमेंट ब्रेक करते हैं तो 50,000 चार्ज होता है। That is bond. 50,000. Right. Yeah. Correct. या तो उसी के वही जो उसमें लिखा हुआ था ना, एग्जैक्टली एचआर ने वही क्वेश्चन पूछे कि आर यू ओके विद दैट, आर यू ओके विद दैट, तो वैसा ही था। Perfect. तो एचआर की तरफ से कुछ आपको टफ क्वेश्चन नहीं आया है ना? नो सर, एंड एक्चुअली आई थिंक जहाँ तक मैंने दूसरे कैंडिडेट्स का भी पूछा, 1-2 से ही बात हो पाई, प्राइम में 1-2 से ही बात हो पाई, एंड निंजा में से हुई थी क्योंकि निंजा में हर्षवर्धन अपने कॉलेज का ही एक था। हाँ राइट। तो उनसे भी यही बात हुई थी कि एचआर ने ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चंस किसी को नहीं पूछे थे आई थिंक, जहाँ तक मैंने रिव्यूज लिए। एचआर के ये फिक्स क्वेश्चंस ही थे कि आर यू ओके विद दैट, आर यू ओके विद दैट, एवरीथिंग वाज दैट ओनली। ऑलराइट, परफेक्ट। सो आई थिंक इट वाज नॉट वेरी टफ इंटरव्यू। सो बहुत बार ऐसा होता है कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पैनल, ठीक है। बहुत बार पैनल्स जो होते हैं वो बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, they look for few things only। कुछ पैनल्स होते हैं जो बड़े टेकी होते हैं, मतलब बहुत कुछ करवा लेते हैं। जैसे कि वेद, आपका जो हमने मॉक लिया था, डेफिनेटली वो तो बहुत ही ज्यादा टफ था आपके इस इंटरव्यू से। या एक्चुअली सर जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा जो फाइनल इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद यही थॉट आ रहा था कि आई थिंक इससे टफ तो आई थिंक मैंने एक्सटर्नल कॉलेज के एक्सटर्नल वाइवास दिए होंगे आई थिंक। हाँ नहीं, राइट। हमने आपसे मॉक में कितने मतलब कोड्स लिखवाए थे, एंड देन दे वर वी मेड इट वेरी टफ, बट अगेन यू आर लकी दैट इट वाज नॉट वेरी strict panel, otherwise they could have asked you tough questions also, और चीजें डीप में जाती हैं, बट या गुड। सो ओवरऑल या वेद, या जैसे आपने कहा कि थे, आई थिंक मैंने सुने थे 1-2 कैंडिडेट्स के ऐसे ही रिव्यू, उनके पैनल्स थे जो एमआर पैनल्स ही, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि जो टेक्निकल पर्सन्स थे वो आई थिंक जूनियर लेवल पे या फिर समथिंग सीनियर, मे बी सीनियर इंजीनियर्स हो सकते हैं, बट जो एमआर थे वो आई थिंक प्रॉपर्ली मैनेजर्स ही लग रहे थे। एमआर आर 15 years and above, technical panel is 5 years and above something।
हाँ, तो Okay. आई थिंक एमआर काफी प्राइम इंटरव्यूज ऐसे भी थे कैंडिडेट्स के जो एमआर ही टेक्निकल क्वेश्चंस काफी डीप पूछ रहे थे। एमआर ही टेक्निकल क्वेश्चंस काफी डीप पूछ रहे थे, टेक्निकल कोडिंग एंड उसके अराउंड घूमते थे, बट एमआर जो पैनल थे वो भी टेक्निकल क्वेश्चंस डीपली पूछ रहे थे किसी को। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि एमआर जो होता है वो भी इनिशियली ज्वाइन तो एज ए डेवलपर ही करता है, फिर विद टाइम प्रमोट हो के मैनेजर बन जाता है। तो बहुत बार जो बहुत टेकी एमआर होते हैं वो भी काफी आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, तो तो दैट दैट थे दैट्स ऐसे भी कॉमन। रिव्यूज थे, तो सो बी प्रिपेयर्ड एंड टोटली जैसा आपने कहा एग्जैक्टली वैसा ही है कि पैनल्स पे डिपेंड करेगा टोटली। Any advice you want to give to all the students who are going to appear for the interview? वन एडवाइस एक यही रहेगी कि अगर मतलब कि समथिंग लाइक दैट कि आप कुछ आंसर नहीं कर पाए, जैसे मैं एक कोडिंग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया था, सो आफ्टर दैट आई ट्राइड टू शिफ्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स वट एवर आई नो, कि जो भी मुझे आता है मैं उस तरफ पूरा का पूरा कन्वर्जेशन ले जाने की ट्राई कर रहा था। कि मैं फिर वहीं से शिफ्ट हो गया कि सर मैंने इंटर्नशिप की है ऐप डेवलपमेंट में, तो वी शुड टॉक ऑन दैट। तो मैं शिफ्ट करने की ट्राई कर रहा था कन्वर्जेशन। मैंने अपने कॉलेज वालों के भी यही कहा, उनका भी अभी सेशन हुआ था मेरे साथ, तो मैंने उनको भी यही एडवाइस दी कि एक चीज ये सीख लेना कि आपको कोई अगर आंसर करना नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करो कि अपनी कन्वर्जेशंस इस तरफ ले जाओ कि जिस तरफ आपको आता है, मतलब कि जो आपने इंटर्नशिप की हो या प्रोजेक्ट किया हो या समथिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई हो जो आपको आती है, तो उस तरफ आप शिफ्ट करने की ट्राई करो। तो वो एक चीज आप देख लेना, लर्न कर लेना कि किस तरीके से मैं कन्वर्जेशंस जो भी हो रहा है वो ट्राई करूँ धीरे धीरे लेके उस तरफ वो डायरेक्शन में ले जाओ जो डायरेक्शन मुझे पता है। This is a very good approach, Ved, and I like. देखो, I have told yesterday also to everyone that as a panel we never have fixed question in our mind. ठीक है, हम तो क्या बोलते हैं, जो दिमाग में आता है, जो रेज्यूमे में दिखता है उससे पूछते हैं, एंड देन उसके बाद जो कैंडिडेट आंसर कर रहा है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आंसर से निकल के आता है। तो बहुत बार क्या होता है, इसमें एक और चीज मैटर ये भी करती है कि जो पैनल होता है उसका कोई सर्टेन एक्सपर्टीज एरिया होता है। जैसे एज ए पैनल अगर मैं कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, लाइक इफ आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट ऑन जावा, ठीक है, स्प्रिंग बोट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि कैंडिडेट से उस पे मैं डीप में जाऊं, और कैंडिडेट शायद पाइथन ज्यादा अच्छे से जानता हो। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो आपको वहां पे करेक्ट करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि सर यू हैव टू स्पीक कि सर आई कैन बेटर आंसर यू इन पाइथन, or you can I can I am good at Python, so you can ask me questions from there। देखो, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं बता पाओगे, दूसरा पूछेगा, नहीं बता पाओगे, तीसरे में वो अपना मन बना लेगा इसको नहीं आता। ठीक है, बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर माइंडसेट बना लेता है कि यार ये नहीं बता पा रहा, नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, आई एम डन। ठीक है, लेकिन अगर आप दो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको लग रहा है यार ये उस एरिया से पूछा जहां मुझे नहीं आता है, तो अपने आंसर में कुछ वो बातें बताओ, सर आई एम वेरी गुड एट पाइथन, मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं। तो फिर उसको लगेगा कि मैं इससे वहां से पूछूं, और वहां पे आपके पास चांस है। लाइक वेद ने पैनल को रिडायरेक्ट किया कि उसका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एंड देन दे हैव आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, इसको कहते हैं ड्राइव द इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू को कैंडिडेट ड्राइव करता है, पैनल कभी भी सोच के नहीं आता कि क्या पूछना है। ठीक है, बट इट रिक्वायर कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के आप ये नहीं कर सकते हो, आप घबरा जाओगे कि यार ये मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ से पूछ रहा है, मेरे तो रिजेक्ट हो गया, मेरा तो मतलब आप इतने नर्वस हो जाओगे कि आप सोचोगे शिट यार यहाँ से पूछ के यही मैं छोड़ के आया था। वी गेट सच टाइप ऑफ थॉट्स इन माइंड। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस वेद। एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट? कुछ कुछ सो दैट्स नर्वसनेस हैंडल करने पे सजेशन देना चाहोगे? लाइक मतलब एज ए कैंडिडेट of course there is some nervousness, so any thoughts there to help students? एक्चुअली नर्वसनेस के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डोंट फियर, क्योंकि पैनल खा नहीं जाने वाला है हमको, वो जस्ट क्वेश्चन ही करने वाला है। तो मुझे ये डर था, ये पहले ही डर था, बट जैसे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने पहले ही मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि हैव यू डन द लंच। तो मेरा पूरा फियर वही निकल गया कि ओके पैनल, आई थिंक अब मैंने वही सोचा कि पैनल अच्छा है, उन्होंने मुझे लंच का पूछा है पहले, तो फिर मेरे मन से वो डर निकल गया था। सो आई सीट प्रॉपरली इधर, तो उन्होंने मुझे यही देखा ही नहीं कभी कि ये था कि नहीं था। तो एक्चुअली टेक्निकल पैनल को थोड़ा ये लगा कि ओके मैं थोड़ा नर्वस लग रहा है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया कि आर यू नर्वस।
तो उस तरीके से भी वो पूछेंगे। और फिर मैंने ये बोला कि या सर आई वाज बिफोर एंटरिंग द रूम, तो उन्होंने बोला कि डू यू वांट सम वाटर, तो वो वाटर के लिए भी पूछा उन्होंने मुझे। तो पहले ही वो लोग एक्चुअली तो उनको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी नर्वसनेस है नहीं है, तो उस हिसाब से आपको रूम के अंदर जाने से पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना है। एक लंबी सांस लेके अंदर चले जाओ, कोई फियर नहीं है अंदर। वेरी गुड वेद। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला कि देखो, मैं पैनल था, ठीक है, आई वाज अ सीनियर एचआर, आई हैड टेकन अप सम सीनियर रोल्स इन टीसीएस। तो आपको मैं क्या मतलब ऐसा लग रहा हूँ क्या कि मतलब मैं खा जाऊंगा किसी को? नो, आई एम अ वेरी मच नॉर्मल पर्सन एंड सेम इज द केस विद द पर्सन हु विल टेक योर इंटरव्यू, ठीक है, right? You see, I know how chill I am, right? I make you speak, आप तो बोल ही नहीं रहे हो, right? So panels also make the candidate comfortable. This is actually we used to, as an HR we used to tell panels कि candidate को comfortable करना चाहिए because वो बच्चा है, ठीक है, वो इंटरव्यू देने आ रहा है, वो बच्चा है, वो नर्वस है। And then panels also, some panels definitely are very good, they make you comfortable and nobody is going to eat you. इंटरव्यू इज अ डिस्कशन, एक बात हमेशा याद रखना, इंटरव्यू एक डिस्कशन है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, वेद का इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो इट्स एन इंटरव्यू ओनली ना, सो इट्स अ डिस्कशन, कॉन्टेक्स्ट अलग है। सिमिलरली आपका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मल होगा, बट होगा तो डिस्कशन ही ना, राइट? जो आएगा आप बता दोगे, जो नहीं आएगा वो नहीं बताओगे। नो बडी नोज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट? आप पैनल से भी आप कुछ ऐसा पूछ सकते हो शायद उसको नहीं पता हो। So it is fine that we will not be knowing all the answers, but very important that we remain very composed, we remain very calm and जो हमें आ रहा है हम क्या बोलते हैं उसको अच्छे से बोलें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नर्वसनेस की कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। मतलब सही आंसर देने के लिए क्वेश्चन को सही से सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हियर द क्वेश्चन प्रॉपरली, बिकॉज इफ यू हियर द क्वेश्चन प्रॉपरली यू विल बी हाई चांसेस दैट यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। अब होता क्या है, नर्वसनेस पे ना माइंड क्लाउडी होता है, क्लाउडी, ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, फिर पूछते कुछ है आता कुछ है, और फिर ये भी होता है कि आप रिट्राइव भी नहीं कर पाते हो, आप पढ़ के भी आते हो रिट्राइव भी नहीं कर पाते हो। अब बच्चा टीसीएस का सीईओ याद करके आता है के कीर्तिवासन, वहां पे करता है के से कुछ था, के से कुछ था, तो दिस इज बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, और उसको इंटरव्यू के रूम से बाहर निकलते ही क्लिक होगा कि यार वो तो के कीर्तिवासन था, राइट? तो गुड वेद, आई थिंक वेद आपने काफी अच्छे से पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, एंड आई मस्ट टेल यू दैट जो आपके अप्रोचेस हैं वेदर टू हैंडल नर्वसनेस और आंसरिंग एनी क्वेश्चन दैट यू डोंट नो आर वेरी वेरी मेच्योर्ड, ठीक है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को स्विच किया कि जो आपको आता है उस तरफ आपने बात करी, और नर्वसनेस के लिए भी you had a very good approach. So good way. I feel that your interview went very good because at the end of the day it is about the vibe. कि मतलब आपने क्या वाइब फील करी और पैनल्स ने क्या वाइब फील करी। आपको इंटरव्यू देके मजा आया, यू फेल्ट हैप्पी, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग इफ यू फील हैप्पी अबाउट समथिंग इट इज लाइक वाइज फॉर अदर्स एज वेल। तो आई होप वेद आपको अच्छा लगा इंटरव्यू देके, करेक्ट? It was overall a good Yeah, sir, it was a experience, best experience. It है was ना? a best experience. I Superb. actually sir I was ready, अगर वो मुझे पूछने वाले थे कि अब तक का अभी बेस्ट क्या बोलते हैं अचीवमेंट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं यही बताने वाला था एक्चुअली कि आई एम सिटिंग हियर एंड गिविंग इंटरव्यू फॉर दैट रोल। एक्चुअली दिस इज द वन ऑफ द माय बेस्ट अचीवमेंट। तो अगर किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो ये यार आंसर आप बेस्ट दे सकते तुम्हारा हो तो, एक्चुअली। तुम तो एकदम दिल में तीर मारते ये बोल के इट वॉज अ वेरी वेरी प्लीजिंग आंसर। गुड गुड। देखो गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे आई वांटेड टू डू दिस पर्टिकुलर सेशन, मतलब मैं आपको यही फील कराना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज आर वेरी नॉर्मल, ठीक है। द एंटायर ऑब्जेक्टिव टू hosting all this session is to make you feel that interviews are not tough, the panels are not devils, and then you can also easily crack the interview, राइट? सो आई होप व्हेन यू आफ्टर हियरिंग वेद आपका भी थोड़ा डर कम हुआ होगा, एंड नाउ यू मस्ट वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ही इज फ्रॉम प्राइम कैडर, तो उसका इंटरव्यू मस्ट हैव बीन लिटिल लिटिल टफ, एंड पैनल्स डेफिनेटली आर प्राइम के पैनल्स भी अलग होते हैं, थोड़े से
अच्छे पैनल्स होते हैं इन द सेंस की फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस, रेटिंग एंड एक्सपीरियंस. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच वेद. नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस. अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. Both Ved and me will answer your questions. Okay. Yeah. Go ahead now. Floor open to you. Guys, I have given you the access to unmute. Yeah. Yes. Hello, sir. I'm Aditya Arpule. Am I Uh, audible, sir? yes, you are audible, Aditya. Go ahead. Which Yes, sir. college name? College as well. Yes, sir. I'm from MITM Ujjain. Perfect. Go ahead, Aditya. सर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 22 के लिए, निंजा के लिए. Okay. सर वेद ने मतलब काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया, मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने बताई. सर मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए एज ए निंजा कैंडिडेट. यार देखो, जैसे कि आपने अच्छा. वेद को जब सुना होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वन थिंग, कि सारे क्वेश्चंस ना मतलब मेजरली रेज्यूमे से आते हैं. ठीक है. तो रेज्यूमे को अपने उठाओ और उसको देखो कि यार इससे क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है. सो यू ओपन योर रेज्यूमे. इफ यू हैव इट विथ यू, आपका रेज्यूमे आपके साथ में है, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस सर, आई विल शेयर दिस. लेट मी मेक यू को होस्ट. रुको. ओके. आदित्य. ओके आदित्य. या आदित्य, I have promoted you to panelist. You should be able to now share your screen. ठीक है. तो बेसिकली अब मैं आदित्य के रेज्यूमे को देख के आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आदित्य से पूछे जा सकते हैं. वेद, आई होप यू आर नॉट गेटिंग लेट, राइट? Yeah, sir, I am okay with that. I had dinner, so there is nothing. सुपर. अब तो आपका इंटरव्यू हो गया है, अब तो आप एकदम चिल रहेंगे, राइट? टेंशन खत्म आपका. गुड. या आदित्य कहाँ गए भाई, कहाँ गायब हो गए? Meanwhile, I think one person has a question. Anshul, you want to ask your question? Unmute करोगे? आदित्य. यस सर. सर वो मैंने शेयर किया था तो मतलब जूम गायब हो गया था. वापस वापस करो शेयर. मयंक. ओके. Hi Ved, मैं शेयर कर. can you share me the question asked about the linked list? Wait. Hi, am I audible? Yeah, you're audible. Hi, Mike. yeah, you are audible. Okay, I will share in the QA, I think, or a chat section. Chat section में डाल दो आप. Or sir, if you don't mind, I will send to you, I think, maybe, if that possible. हाँ Or should चलेगा. I share in chat section? चलेगा, कहीं भी शेयर कर दो. सब टू यू. अभी चैट में डाल दो. और एक्चुअली सर मैं बोल ही देता हूँ, उनको समझा देता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन क्या हाँ है. चलेगा. बेसिकली लिंक लिस्ट उन्होंने राइट करके हार्डकोर करके ही दी थी. सम लिंक लिस्ट लाइक लिंक लिस्ट तो पता ही होगी सबको, आई थिंक सब आईटी बैकग्राउंड से ही होंगे ना, आई थिंक सर. Yes, yes. हाँ, तो लिंक लिस्ट उन्होंने दी थी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड उसको मुझे शॉर्ट करना था. सम नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं, मतलब कि अलग तरीके से शॉर्ट करना था. उन्होंने के करके एक अलग डिजिट दिया था, लाइक के इज इक्वल्स टू 3 एंड मुझे शॉर्ट करनी थी. जो अगर 1 2 3 समथिंग लाइक लिंक लिस्ट इस तरीके से है 1 2 3 4 5, देन मुझे शॉर्ट करना है उसको लाइक 3 2 1. ये के इज इक्वल्स टू 3 था, तो मुझे 3 डिजिट को शॉर्ट करना है रिवर्स में एंड देन अगेन दूसरे 3 डिजिट को उठाना है और उसको रिवर्स में सॉर्ट करना है एंड देन अगेन 3 डिजिट उसको रिवर्स में सॉर्ट करना है, समथिंग लाइक दैट. सो एरे विल बिकम लाइक 3 2 1 देन 7 6 6 5 4 और समथिंग लाइक दैट एंड एट द एंड 9 8 7. समझ में आया आपको? हेलो. हाँ, मतलब ऐसा है कि आपको
जो k = 3 के गैप से आपको उसको सॉर्ट कर रहा थी। हाँ एक्चुअली, हाँ तो वो उल्टा सॉर्ट करने को बोल दे, या फिर सीधा सॉर्ट, उल्टा सॉर्टिंग दे आपको रिवर्स कर और रहा थी बोल दे कि मतलब इस तरीके एरे। से सॉर्ट करना है। हाँ एक्चुअली उन्होंने मुझे असेंडिंग ऑर्डर्स में सारे अरेंज करके दिए हुए थे, और मुझे 3-3 के पैर में रिवर्स करके देने थे मुझे। ओके। एक्चुअली वेट, मैं ऐसा हो तो आपको लीड कोड का जो नंबर है ना, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर ही मैं शेयर कर देता हूँ। मीनवाइल कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तब तक Yeah. लिख So लेता हूँ। Aditya, I can see your resume. So okay, अभी आपके resume को देख के मुझे क्या क्या questions ऐसे पैनल मेरे दिमाग में आएंगे, ठीक है? So यस सर। okay. Hmm. Yeah, let me go through it. Yeah, sorry. So basically, I can see, देखो आपका work experience है. You have done some internships. You have some projects that you have done. तो मेरा ध्यान जा रहा है कि यस सर। आपका देखो जो आपने हाईलाइट किया है, आई कैन सी आपने स्किल्स में सबसे पहले वेब डेवलपमेंट हाईलाइट किया है, ठीक है? एंड वेब डेवलपमेंट में भी आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, आपने ऊपर टॉप में लिखा है, राइट? यस सर। हाँ. सो वी ऑल्सो डेफिनेटली मेरा पहला इंप्रेशन इसी पे जाएगा कि आई विल आस्क क्वेश्चंस, आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ठीक है? आई थिंक Abhishek sir has also joined this call. Abhishek sir is the former TCS technical panel. So Abhishek, we have one candidate with us. Yeah, camera is on. So yeah, you can see his resume, and he is asking कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना? तो just as in the first glance, what you do you see what kind of technical questions can be asked? देखो, आई कैन सी कि आपने यहाँ पे भी ना, क्या नाम है, आदित्य ऊपर करियर ऑब्जेक्टिव में भी स्टार्टिंग में जावा मर्न स्टैक डाला है, ठीक है? यस सर। तो डेफिनेटली अब आपने इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी डाला है, तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द कोर principles being used in prompt engineering, how the prompt engineering is different for different AI tools, and then definitely questions from Java because that is the first technical skill you have mentioned. Yeah, Abhishek, what else do you think can be asked? First thing, based on his job experience, as he has mentioned that he has developed a Java application. It is always suggested to mention it clearly that in Java what exactly you have done. You have done in front end, back end, or where exactly. Because let's say if you have developed using front end, and if he starts asking question on back end, then it will be a trouble. Second thing, you have mentioned also worked on web development projects utilizing HTML, CSS, and JavaScript. So it is always better if you can. If he asks any question about that, so you can start with saying the example that okay, this is exactly what I have developed. Second thing, based on your project, if most of your project share the same technology, then there are high chances that they will ask in depth on the technology. For example, you have mentioned MERN stack. So if I am a panelist, I am seeing that you have made 3-4 projects on MERN stack. So I will be asking in depth question based on MERN stack, including Tailwind CSS. And most of your resume, it looks like you have worked on Java along with all the web development tools. So you are expected to able to answer all those questions. Right. ओके So, सर। Aditya, you got an idea, right? कि which kind of questions यस can सर। be asked. And then as an MR panel, what I will ask you is कि what are the most important things when it comes to designing a website, or what are the important elements, how does a website for a uh, different customer will vary. So my question will be more on as an MR panel. I mean, technical ke to you got that understanding, but my question as an MR panel will be more on uh, the thought process part. Why do what actually matters into web development,
So how the web development for different customers will vary. अलग अलग companies का अलग अलग होता है. What makes a custom, from what are the user friendly inputs that should be there in the web development, right? So, and then again today, if you see, the AI has a huge role to play in the web development. There are tools there which can actually make a website quickly in minutes. So how they are affecting the entire, do you use them, or how much is their contribution? ओके. सो अगेन उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, देखो इसके प्रोजेक्ट में इसने लिखा है टैरोट स्कोप. तो टैरोट रीडिंग इसने लिखा है. नाउ टैरोट रीडिंग इज क्वाइट मतलब यूनिक. मैंने बहुत कम बच्चों के उसमें देखा है. तो आई वुड बी इंटरेस्टेड कि व्हाट इज टैरोट रीडिंग, कितना एक्यूरेट होता है, डू यू एक्चुअली थिंक कि दिस वर्क्स. अच्छा, तुम्हें लगता है टैरोट रीडिंग से तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो व्हाट डू यू थिंक, आर यू गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू और नॉट? राइट. तो मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. एंड देन Okay, sir. तुमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यहाँ पे हाईलाइट किया है. सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन अगेन. तो भाई तुम ना मतलब बहुत मतलब यू आर ऑल्सो सर्टिफाइड इन टू योगा, which is really good. So you are actually bringing different dimensions to your profile. अब then food and nutrition पे कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? तो अब एक न्यूट्रिशन मतलब एक एप्पल की कैलोरी कितनी होती है तो लेके प्रोटीन पाउडर इज गुड और नॉट, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है आदित्य. तो बी रेडी फॉर, सी वॉट एवर यू मेंशन इन योर रेज्यूमे विल डेफिनेटली कैच द अटेंशन. ठीक है. ओके, यू हैव पीजी डिप्लोमा इन योगा. व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे? So 21st June. 21 जून, राइट. सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं? सो कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर. Sir, should I cut down the points which I'm not sure about, or basically इनके Absolutely, लिए मुझे absolutely. If you are not sure about anything, please remove because you will otherwise invite trouble. आपने लिखा ही क्यों है? लिखा ही इसलिए कि जो पूछना है कि मतलब किसी को आप मतलब प्रॉम्प्ट कर रहे हो. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया है ना आपने, तो जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट कर रहे हो आप सामने वाले को कि भाई यहाँ से पूछ. yes, So yes, we yes. are like we are like your AI tool. Your resume is a prompt to us to ask questions. वाह. Yes, ठीक sir, है. definitely. क्लियर है आदित्य? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग होगी Yes, आपको? sir. Yes, sir. Thank you. ओके, वी हैव लास्ट 10 minutes so we can take few more questions. आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. ठीक है, जो अनम्यूट करेगा उसी का क्वेश्चन Sir, पूछेंगे. हाँ वेद बोलो. सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग फॉर आदित्य. हाँ एक्चुअली प्लीज. मेरे साथ ये हो चुका था. लाइक आई हैव मेंशन, उन्होंने मुझे हॉबीज पूछी तो आई हैव मेंशन लाइक आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल इन माय फ्री टाइम. एंड मैंने मेंशन किया कि आई हैव आल्सो बीन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम फॉर द वॉलीबॉल. तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि डू यू नो एनी फेमस. कैमरा ऑफ है वेद. ओके ओके सॉरी. उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि डू यू नो एनी फेमस वॉलीबॉल प्लेयर, और हु इज योर फेवरेट टीम प्लेयर, और हु इज योर फेवरेट टीम, लाइक समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट वॉलीबॉल के बारे में फिर पूछना स्टार्ट कर दिया. तो इट इज पॉसिबल, लाइक आप हॉबीज या फिर वैसे कुछ भी मेंशन करोगे तो वो भी पूछ सकते हैं. एमआर पैनल विल डेफिनेटली आस्क, आई थिंक. आज मैं एक मॉक इंटरव्यू ले रहा था. आप ही का बैचमेट है वो वेद. So he like his hobbies are badminton. मैंने पूछा who is world number 1 in badminton, and you know he was like sir मैं तो खेलता हूँ बस, मुझे नहीं पता. एक्चुअली या मेरे साथ भी यही हुआ. मुझे भी कोई वॉलीबॉल प्लेयर का नाम या फिर पता नहीं था. उन्होंने मुझे ये भी फ्रीडम दी, इफ यू लाइक एनी इंटरनेशनल प्लेयर और यू कैन मेंशन दैट आल्सो. बट मैंने फिर यही आंसर किया कि एक्चुअली सर इट इज माय हॉबी, आई एम नॉट एनीथिंग समथिंग लाइक प्रोफेशनल. फिर मैंने इनडायरेक्टली मेरे दिमाग में ये है कि मैंने ये बोल दिया कि एक्चुअली सर आई प्ले वॉलीबॉल फॉर द फिटनेस पर्पज, नॉट फॉर द समथिंग लाइक एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स थिंग. एक्चुअली मैंने फिर उन्होंने एक साइंटिफिक हैक था जो मुझे वॉलीबॉल के बारे में पता चला था. लाइक बीइंग व्हेन वी प्ले वॉलीबॉल
वी ऑलमोस्ट 90% ऑफ बोन्स हमारे यूज हो जाते हैं। तो मैंने उनको ये फैक्ट बताया और मुझे बोला कि मैंने बोला कि एक्चुअली सर मैं फैक्ट सुन के ही वॉलीबॉल की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ओके सो यू एक्चुअली यू डन फॉर द फिटनेस पर्पस। तो फिर वही कंक्लूड हो गया वो। गुड गुड। अच्छा, यहाँ पे भी आपने उस टेक्निक को यूज किया कि इफ यू डोंट नो एन आंसर, आंसर अराउंड इट, राइट? सो हाँ, गुड तो मैंने फिटनेस का रीजन दे किया और कंक्लूड कर दिया था फिर ये ऐसी। गुड गुड गुड। वेट, क्वाइट इम्प्रेसिव। देखो, अब उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो अनम्यूट करके अपने आप को बोलेगा, ठीक है? बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस दैट यू आर नॉट अनम्यूटिंग योरसेल्फ। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस, व्हाट इज योर सर नेम? मतलब हम यशराज देसले। यश, या सॉरी, यशराज देसले। व्हिच कॉलेज यशराज? आई एम फ्रॉम नासिक सर, के वागी इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके यशराज, गो अहेड। सर मतलब अब हम इंग्लिश बोलते समय अगर कुछ वोकेबलरी का प्रॉब्लम हो गया और अटक गए एक आध बार, तो अगर हमने थोड़ा सा हिंदी अगर यूज किया तो चलता है क्या? मतलब ऐसा देखो पूछना यार, चाहता। ये नाइन्टी यशराज, फाइव परसेंट से ऊपर तो इंग्लिश में ही होगा, मतलब एक देखो बार आप यशराज, अच्छा रहते। हाँ, देखो, इसका ना कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है बेसिकली। ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द ओवरऑल एक्सपीरियंस, राइट? अगर आप राइट आंसर कर रहे हो तो लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है? अगर आप राइट आंसर भी नहीं कर रहे हो, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है, तो मैटर करेगा, ठीक है? एट द ओके। सेम टाइम्स एफर्ट्स देखे जाते हैं। मतलब आप यस अटक रहे सर। हो फिर भी आप बोल रहे हो, तो ये भी शो करता है कि यू आर ट्राइंग टू स्पीक एटलीस्ट। तो अगर 95% है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ओके यशराज? सर। यस सर। ठीक है, गुड। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज? हेलो सर। या, हेलो। नाम आई और एम ऑडिबल? कॉलेज? या, अंशुल, आई एम फ्रॉम IIT DAV इंदौर। यस अंशुल। सर तो मैं जैसे मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। यस। तो ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता मैकेनिकल वाले स्टूडेंट से कि उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो। और जितने भी मैंने जब इंटरव्यू किया है सब में एक कॉमन चीज़ रहती है कि अगर आप मैकेनिकल का कोडिंग में क्यों जा रहे हो और कोडिंग करने के लिए आपने मैकेनिकल क्यों लिया, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को जवाब देने अच्छा, में। अब मैं अगर ऑनेस्टली हाँ, जवाब दूं उनको तो नहीं, यू, फिर वो जज करने लगते हैं। डू हाउ डू यू लाइक कोडिंग? यू अंडरस्टैंड कोडिंग? मतलब स्टार्टिंग से कोडिंग ही करनी थी तो मैकेनिकल कोई प्रेफरेंस नहीं थी मेरी, पर मेरे पास जब काउंसलिंग की मैंने कॉलेज सिलेक्शन के लिए तब मेरे पास ऑप्शन था नहीं मैकेनिकल, और सिविल था बट बस मेरे बट पास। अदरवाइज यू आर ए हार्डकोर कोडर, राइट? आप अच्छे से कोडिंग कर लेते हो। हाँ। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाय द वे, और आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है? एंड जस्ट हम्म, फॉर योर इंफॉर्मेशन, CEO of TCS is also a mechanical engineer, तो ठीक है? नहीं And तो देखो, जैसे इट्स, कुछ CS सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है क्या? कुछ मेरे को सब्जेक्ट आते हैं कुछ नहीं आते हैं। नहीं, दैट्स ओके। यार, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है? वैसे मैं DSA के लिए तो मैं जावा करता हूँ और प्रोजेक्ट वगैरह बिल्डिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करता हूँ। पर मेरे हाँ। को आगे जाके एक्सप्लोर करना है जावा के डेवलपमेंट वगैरह, पर अब फिलहाल तो यही है। अभी तुम ना, तुम्हारी जो मतलब थोड़ी ऑकवर्डनेस है मैकेनिकल की, उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करो। मतलब तुम इसको ऐसे प्रेजेंट करना कि यू लव कोडिंग सो मच दैट कि डिस्पाइट अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू डू कोडिंग। नंबर वन। नंबर टू, यू शुड हम्म, से कि देखो सर, आई इफ somebody ask you what is your achievement, you should say, sir, despite from mechanical background I was able to crack the prime, I was हम्म, able to get shortlisted for the prime interview। तो हम्म, आप ना अपनी जो आप जिसको वीकनेस मान रहे हो ना, उसको स्ट्रेंथ बना के दिखाओ। जैसे ओके। कि बहुत लोग है ना, इंग्लिश नहीं बोल पाते अच्छे से, जैसे ये यशराज का क्वेश्चन था। तो आप बोलो कि हम्म, सर, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, एंड डिस्पाइट दैट आल्सो आई एम एबल टू स्पीक टू यू इन कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। तो वो आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी। मैं एक बार एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, एक मतलब NQT के लिए ही था वो, और वो बच्चा महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र के किसी गांव का था। कोविड के समय की हम्म, बात है, और वर्चुअल इंटरव्यूज थे, बच्चे घर से इंटरव्यू दे रहे थे, और बच्चा, उसके पीछे ना नारियल के पेड़ दिख रहे थे इंटरव्यू में, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में। तो मैंने कहा, यार ये तो बड़ा अजीब है, तुम कहाँ बैठे हो? उसने कहा, सर मेरे गाँव के पीछे मैं गाँव में बैठा हूँ। मैंने कहा, अच्छा। उसने दिखाया पूरा नारियल का पेड़, खेत वेत।
फिर इंटरव्यू चला, अच्छा था वो बच्चा। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर अचीवमेंट, तो उसने कहा सर मैं गांव से आता हूँ महाराष्ट्र के, और मेरी 12th यहीं के गांव के स्कूल में हुई है। मुझे सर बिल्कुल भी क्या बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई भेज दिया, और सर वहां में गया तो सब इंग्लिश बोलते थे, तो मुझे देख के ना बहुत शर्म आई। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे अब थोड़ा अपना आत्मसम्मान रखना है ना, तो मुझको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और बोले सर तब से मैंने दिन रात इंग्लिश पे काम किया, और आज मैं आपसे इंग्लिश में बात कर पा रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। मुझे आज भी वो बंदा याद है, और 100% ही वॉज अ सिलेक्ट। तो उसने अपनी वीकनेस को एज अ स्ट्रेंथ यूज किया। सो यशराज, इवन यू शो दैट ये इसको तो बोलते हैं पैशन, राइट? कि दूसरी ब्रांच होके भी हम लोग मतलब यस यहाँ सर। पे मतलब अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अंशुल आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ जाना। ओके, ठीक है, क्या मैं अपना रेज्यूमे शेयर कर सकता हूँ तो आप थोड़ा बता सकते हो तो? आपने क्या पूछा? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, सॉरी। मैं रेज्यूमे शेयर कर सकता हूँ, आप थोड़ा ओवरव्यू बता दीजिए कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। देखिए, आप आपका रेज्यूमे तो शेयर कर सकते हैं, बट जैसे आपने आदित्य का रेज्यूमे देखा ना, सेम हम्म, चीज क्या बोलते हैं वही चीज आपके उसमें भी अप्लाई होगी। ओके। मतलब इट इज लाइक दैट। मतलब मुझे साफ आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, आपके आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, है ना? हम्म, और एट द सेम टाइम आपको थोड़ा मैकेनिकल का नॉलेज भी रखना है। ओके। मतलब ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पैनल्स भी क्या होते हैं दूसरे बैकग्राउंड के होते हैं। अब जैसे कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, तो कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट आता था ना, तो मैं उससे मैकेनिकल के क्वेश्चंस खूब, उस टाइम पे मैं एचआर की जगह टीआर पैनल बन जाता था, राइट? आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट यू नो आईसी इंजन्स, सो एंड थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इन सब के क्वेश्चंस मैंने पूछा करता था। तो या इट वाज अ गुड थिंग। देखो, जितना आप डिफेंड कर सकते हो, जितना आप जस्टिफाई कर सकते हो, आप भले ही फिर आर्ट्स के स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आप इंटरव्यू निकाल लोगे। और अगर आप ओके। जस्टिफाई नहीं भी कर सकते हो ना, तो आप आईटी के स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने डिग्री क्यों ना ली हो, तो भी आप नहीं निकाल पाओगे। ओके। ठीक है एंड एक अंशुल? और चीज़ थी, जैसे सॉरी। अभी मैं कोई एक इंटर्न मिले जो कल से स्टार्ट होगा जिसमें काम मेरा, तो उसको क्या मेंशन करना चाहिए? क्योंकि जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक मे बी एक वीक भी हुआ होगा, तो उसको नहीं, मेंशन मत करूँ नहीं करो करूँ? मेंशन, डोंट मेंशन एनीथिंग लेस देन, मतलब एटलीस्ट 1 मंथ। क्या बताओगे आप? कंपनी को भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। ओके। All right, so I hope you find this session interesting. Thank you so much, Ved. Can you just come on the camera, before we conclude? तो guys, I hope आपको एक real insights मिली होंगी, and we will be doing this call tomorrow also. और अगर आप आते रहेंगे तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। कल मैं किसी निंजा कैंडिडेट को बुलाने वाला हूँ जिसका रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है। और अगर आप इस कॉल में आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको भी आके शेयर करना पड़ेगा। कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू करियर कुंज। आई एम ट्राइंग टू मेक ए कम्युनिटी दैट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जितना हम किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, उतना हम ना किताबों से सीख सकते हैं ना यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है, आप सब थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, और वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो सी यू टुमारो एज वेल। एंड बिफोर वी कंक्लूड, विद कैन वी हैव अ सेल्फी विथ यू अलोंग विथ शोइंग वी, या ऐसे सर। करते हुए, है ना? रुको, स्माइल। Chalo, good way. Thank you and all the best to everyone who has their interview tomorrow. And do join tomorrow. Also share with your friends. यहाँ पे इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, दुनिया कहाँ है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो it would be really good if you can share with your friends and we can have more people so that we can have better questions, and then those can help us to understand something which can be a question for the interview. All right, good night and all the best for your interview. Thank you so much. Signing off. Okay, wait. Thanks for joining and taking time. थैंक यू सर। Okay, all right.